باتیں شروع کی تھی اور اس میں پھر شہناز نے بھی شروع کی اور بہت سارے دوستوں نے، تو اس وقت لوگ ان کو سننا پسند بھی نہیں کرتے تھے. لیکن آج دیکھیے دنیا جو ہے تو اس لفظ کی طرف آ گئی ہے، انٹرپرنیورشپ، انٹرپرنوریل اور یہ انٹرپرائز، یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. اور آج ہماری اس 45 منٹ کی جو نشست ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں ایز اے ٹرینی یا ایز اے لرنر، ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ یقین نہیں کریں گے میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، وہ ان کو بھی یہ سن رہی ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہیں ابھی 7 گریڈ میں اور 8 گریڈ میں، تو وہ ابھی بھی سن رہی ہیں. یہ ریئلائز کروانا ہے کہ کیا امپورٹنس ہے، سگنیفیکنس کیا ہے ان انٹرپرنوریل کمپیٹنسیز، کیوں مجھے سیکھنا چاہیے، یہ کیوں میرے اندر ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر آج ہم زیادہ بات کریں گے تاکہ آپ کو ایک جھلک سی مل جائے کہ کمپیٹنسیز کیا ہوتی ہیں، انٹرپرنوریل کس کو کہتے ہیں. شروع کرتا ہوں. میں ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے بہت سارے سوالات ہوں گے درمیان میں، تو آپ وہ نوٹ کر سکتے ہیں، اپنی کاپی پہ اپنے پیڈ پہ لکھ لیں تاکہ ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری تمام باتوں میں یا جہاں کبھی میڈم پچ ان کریں گی، میڈم عائشہ، وہ بھی ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں، تو ان کے بھی الفاظ اور واقعی بڑے اچھے الفاظ کے مسائل کو ایک خاص نظریے سے دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ ہمارے ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے سوالات کا جو ہے جوابات ہم اپنی باتوں میں دے دیں. ابھی اگر میں دیکھتا ہوں تھوڑا سا ایک اور سلائیڈ کو میں آگے کروں گا، انٹرپرنیورشپ. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس تصویروں کو دیکھتے ہیں تو ایسی بیٹھ کے خیال آ رہا تھا کہ ایک طرف کچھ 2 لوگ ہیں، پھر آگے ایک کشتی ہے، پھر اس کے آگے کوئی ایک اور تصویر ہے. سلائیڈ پیچھے والی شاید ہے، یہ اگلی سلائیڈ ڈسپلے پہ ہے. ہاں ٹھیک ہے میں صحیح جا رہا ہوں، انٹرپرنیورشپ کی آ گئی ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں، کیونکہ دیکھیے آپ نے کہا تھا نا کہ آج کل ایک ورڈ بہت مشہور ہے، انٹرپرنیورشپ. جی سر. تو میں نے کہا کیوں نہ ادھر ہی سے سٹارٹ لے لیں تاکہ یہ ورڈ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ اچھا یار یہ اتنی بڑی چیز کیا ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے. اب اگر میں ان لفظوں کو توڑتا ہوں نا تو دیکھیے ایک طرف آتا ہے انٹرپرنیور اور دوسری طرف بنتا ہے شپ. یہ میں لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں جی ہاں یس نو والی باتیں آ سکتی ہیں بیچ میں زنیرہ، تاکہ مجھے سینس ملے کہ پیپل آر. اگر جو بھی اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں، جو بھی پارٹیسپینٹس، آپ یس اور نو کہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے رسپانس دیں جب بھی سہیل صاحب آپ سے کوئی بھی بات پوچھتے ہیں. ہاں اچھا چلیے میں سب سے پوچھتا ہوں. جی یس سر وی کین. بہت شکریہ. کہنے کے بعد پھر میوٹ کر دیا کریں. اچھا اب اگر ہمیں دیکھتا ہوں تو دیکھیے یہ کچھ تیر کے نشان ہیں. تو ایک تیر جو ہے وہ 2 لوگوں کے ڈاؤن ورڈ ہے، یعنی ایک مرد ہے، عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جیسا بھی آپ کہیں. میں اس کو پرسن کہتا ہوں، اور جو میں نے سیکھا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ پرسن ہے جس نے ایک خاص جی کیا ہوا؟ ایک ہی پرسن نظر آ رہا ہے سر ادھر. تو 2 لڑکا لڑکی نہیں ہے؟ نہیں مجھے تو دونوں نظر آ رہے ہیں آپ کی اسکرین پہ. سر لڑکا لڑکی 2 ہے. آپ سلائیڈ آگے کریں گے تو سلائیڈ میں پیج نمبر 2 پہ یہ بنے ہوئے.
آپ کی اسکرین کے I نیچے think والی کنیکٹ وہ ہو ہے سر ہمارے ادھر. آ جائے گی. نہیں زنیرا اس سلائیڈ نمبر 2 ہے ڈسپلے پہ. ساجد صاحب آپ سن رہے ہیں تو آپ دیکھیں سلائیڈ نمبر 2 ہے ڈسپلے پہ. اگر مجھے ڈسپلے نظر آ رہا ہے تو باقیوں کو بھی آنا چاہیے. اچھا ایک کام کرتے ہیں سر نظر نہیں آ رہا ڈسپلے. ساجد صاحب آپ سر پبلک سوٹ میں اوپر ڈیسائیڈ لکھا ہوا ہے بس. اچھا بیٹا آپ میوٹ کریں سر. دیکھیے کوئی اور کو کنٹرول بالکل ہی خراب ہے. زنیرا سب کو کنٹرول کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں سر کسی کے پاس نہیں ہے. مجھے ساجد صاحب کی بات سننے دیں. جی ساجد صاحب. ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سہیل صاحب اس کا دوبارہ کنٹرول رہیں. میں ان کو ایک سیکنڈ ابھی میں آپ کو دیتا ہوں. اچھا جی. اچھا سر ایک کام کرنا ہے, جب آپ اس کا کنٹرول لینا تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی آنکھ بنی ہوئی ہے, آپ نے اس آنکھ کو کلک کرنا ہے تاکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی سارے پارٹیسپینٹس بھی دیکھ سکیں. سر ابھی آپ کنٹرول لے لیں اور اس کے ساتھ جو آنکھ ہے اس پہ کلک کر لیں. اچھا جی اب ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. اب سب کو نظر آ رہے؟ جی سر. یہ کنٹرول آپ کے پاس نظر آ رہا ہے سر. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم یو ویلکم یو ویلکم. نہیں نظر آ رہا. ہاں کس کو نہیں نظر آ رہا؟ چلو کوئی بات نہیں, آپ سن سکتے ہیں. مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ سوچئے کہ آپ بجلی نہیں ہیں اور ہم اس بات سننی ہے. سر مجھے بھی نہیں نظر آ رہا. نہیں آ رہا سر نظر. اوکے سر. چلیے آپ سب لوگ ایسا سمجھیں کہ بجلی چلی گئی ہے اور اب ہم جو ہے نا وہ پرانے زمانے کا نوکیا جو 336 والا تھا 2836 موبائل اس پہ باتیں کر رہے ہیں. جی زنیرا. زنیرا آپ کو نظر آ رہے ہیں جو سلائیڈ نمبر 2 ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے. میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں, ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ ہم سب کو یہ سمجھا دیں کہ یہاں پہ کہیں پہ وہ بٹن بنا ہوتا ہے کہ وہ کون سا بٹن ہے جس کو دبانے سے پریزنٹیشن ڈسپلے ہو جائے گی سامنے. ٹھیک ہے نہیں وہ تو آٹومیٹکلی یہ ڈسپلے ہوگا. اچھا ٹھیک ہے پھر. ٹھیک ہے پھر آپ سب کے مائک میوٹ کر دیں تاکہ سہیل صاحب سیشن کنٹینیو کریں. ہاں جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. سہیل سر اب کنٹینیو کریں. جی سر نظر آ رہا ہے سر. بہت شکریہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب میں اس لفظ کو توڑتا ہوں, انٹرپرنیور کو اور شپ کو اگر الگ کرتا ہوں تو اس کا کوئی آؤٹ کم ملتا ہے, اور وہ آؤٹ کم جو ہے نا اس کو ہم بزنس کہتے ہیں, انٹرپرائز کہتے ہیں. اور وہ جو پرسن ہے انٹرپرنیورشپ میں تو وہ پرسن انٹرپرنیور کہلاتا ہے. اب شپ جو ہے اس کو بھی تو سمجھنا ہے. یہ تو سمجھ آ گیا کہ وہاں کوئی بندے ہیں, وہاں کوئی کاروبار ہے یا مارکیٹ ہے. یہ شپ کیا ہے؟ یہ شپ جو ہے یہ پروسیس ہے. یہ ایسا پروسیس ہے جو وہ جو پرسن ہے جس کو ہم انٹرپرنیور بھی کہتے ہیں, اس کی سکلز کو, اس کی نالج کو, اس کے ایٹیچیوڈز کو امپروو کرتا ہے تاکہ وہ عام سے خاص پرسن بن جائے. ٹھیک ہے, یعنی improving the skills, knowledge and attitude of the person or entrepreneur through مختلف ٹریننگز کے ذریعے سے, مختلف پروگرامز کے ذریعے سے, مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے. اور
इसका जो लुब्बे लुबाब है वो क्या है, होल पॉइंट क्या है ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वो ये है कि आप नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को इंक्रीज करें। जब नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज होंगे तो इनकम इंक्रीज होगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी। या आप ये कहते हैं कि अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम कर रहा हूं तो वो प्रोसेस और वो एक्शन जो एक एंटरप्रेन्योर लेना चाहता है टू एस्टैब्लिश हिज और हर एंटरप्राइज, तो उस प्रोसेस को जो है, उन एक्शंस को भी हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप से तशबीह देते हैं। या इससे और एक खूबसूरत बात मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्ट है या आर्ट है, आर्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, है ना। एक्ट का मतलब कुछ करना, कुछ कर गुजरना, है ना, और आर्ट तख्लीक कारी है एंटरप्रेन्योर बनने की, ताकि वो क्या कर सके, वो ट्रांसफॉर्म कर सके, वो तब्दील कर सके इनोवेशंस को या अपॉर्चुनिटीज को इनटू, या रिसोर्सेस को इनटू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में, जिससे वो कोई पैदावार कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, या वो ट्रेड कर सकते हैं, या वो अपनी खिदमत सर्विसेज दे सकते हैं। इसकी मिसाल मैं ये भी दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में ट्रेनिंग अगर ले रहे हैं तो इसमें जो प्रोडक्शन है वो खानों की प्रोडक्शन हो सकती है, वो चीज आइटम्स की प्रोडक्शन हो सकती है, वो बेकरी आइटम्स की प्रोडक्शन हो सकती है। ये क्या हुआ? Something happened? Hello? Nothing sir, we will continue. तो ये मेरे वाले में से उड़ क्यों गया? साजिद साहब ये स्लाइड प्लीज देखें, सुहेल साहब की स्लाइड डिस्प्ले नहीं हो रही। सर आप दोबारा इसका कंट्रोल लें, प्रेजेंटेशन का दोबारा कंट्रोल लें। अच्छा जी, अच्छा सर वन सेकंड, चले, मैं बीच में बोलता भी रहता हूँ, बोल भी रहा हूँ, फिर मैं कंट्रोल भी ले लूंगा अगर आ गया तो। यहाँ नहीं आ रही सर अभी एक सेकंड दें। अच्छा चलिए मैं पहले इनको बताता हूँ। तो कौन बताएगा मैं कहाँ तक बात कर चुका? जी सर आपने यहाँ तक बात की कि अगर कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ट्रेनिंग ले रहा है तो उससे जी ऑनवर्ड। बिल्कुल 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 सर आपने बोला था और कोई उसमें कुकिंग प्रोडक्शंस वगैरह हो सकती हैं शेफ की बतौर, तो यहाँ पर थे आप। तो सर आपने एक्ट और उसकी बात की थी और जो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी मैंने ये कहा कि ये तो वो अमल है, वो आर्ट है, वो क्रिएटिविटी है कि कोई भी शख्स जो अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहता है वो मौक़ों को, वो अपॉर्चुनिटीज को, मैं दोनों लफ्ज साथ साथ इसलिए बोल रहा हूं कि बाज़ दफा लोगों को इंग्लिश का लफ्ज आसान लगता है, तो जो मौक़ों को या अपॉर्चुनिटीज को तब्दील करते हैं किसमें, इनकम जनरेशन में। और इनकम जनरेशन एक्टिविटीज जो है वो 3 किस्म की होती हैं, प्रोडक्शन है, ट्रेड है और सर्विसेज। ठीक है, अच्छा अब बात यहां तक है कि जब हम 3 किस्म की होती हैं वो अक़साम प्लीज। जी, प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग भी आप कह सकते हैं,
ट्रेड एंड सर्विसेज, ट्रेड एंड सर्विस, और प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। जी सर। हाँ, इकोनॉमिक्स में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, तो मैं ये बताऊंगा, मैं दोबारा कंट्रोल ले लूं? जी सर। आ गया जी, ले लिया कंट्रोल। तो मैं यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा था कि असल में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये उसकी एक एबिलिटी और उसको रेडीनेस के ऊपर काम करती है, टू डेवलप, टू ऑर्गेनाइज, टू रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। यानी अगर हाशु फाउंडेशन चाहता है कि आप लोग इस काबिल बने, ठीक है, वो आपको एम्पावर करना चाहते हैं, जैसे मैडम आयशा ने बताया, वो आपको एनेबल करना चाहते हैं, जैसे मैडम आयशा ने बताया, वो चाहते हैं कि आप कुछ कमाने के काबिल हो जाएं, आप बेहतरीन लोग बन जाएं, ठीक है ना, और आपके प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हों या आपकी बेहतरीन जॉब्स हों, तो उसके ऊपर अगर काम करना है तो फिर आपकी हुनर के ऊपर काम करना है, आपके इल्म के ऊपर काम करना है, आपके रवैयों के ऊपर काम करना है, ताकि आपकी एबिलिटी को और रेडीनेस को डेवलप किया जाए, ताकि आप एक बेहतरीन किस्म से या तो इदारा चला सकें या अपना इदारा बना सकें। दोनों सूरतों में चला सकें से मुराद ये है एज एन एम्प्लॉय, और अपना कारोबार कर सकें से मुराद ये एज एन एंटरप्रेन्योर। अब अगर ये सारे किस्से में देखें एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट में, कि जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, शिप की बात करते हैं, और जब मैडम कहती हैं कि आपको एम्पावर करना और एनेबल करना है, तो वो शिप असल में क्या है? व्हाट इज शिप? प्रोसेस एंड एक्शन। क्या प्रोसेस है? आप अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करें, उन अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करें इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आप बिजनेस प्लान बनाएं, आप मार्केट सर्वे करें, आप फिजिबिलिटी करें, आप आप जितनी भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन है आप वो कर सकें। उसमें टूल्स है, इक्विपमेंट है, फाइनेंस है, ह्यूमन है, बहुत सारे रिसोर्सेज जो कारोबार को करने के लिए होते हैं, उन प्रोसेसेस को, उन एक्शंस को एक एंटरप्रेन्योर ले सके। आप इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी मैनेजमेंट है कारोबार की, उनके प्रोसेसेस को, उनमें आप जो है तो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए आपको। आप फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस का सिस्टम है, आपके अकाउंट्स के प्रोसेसेस हैं, आपके प्रोडक्शन है, सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके ऊपर अगर एंटरप्रेन्योर को ट्रेन किया जाए तो उसका आउटकम एक बेहतरीन एंटरप्राइज मिलता है, बेहतरीन बिजनेस मिलता है, यकीन जानो। और हाशु फाउंडेशन यही आपके लिए कर भी रहा है। अच्छा, अभी तक जो हमने ये 10, 12, 15 मिनट इस एंटरप्रेन्योरशिप को देखा, जाहिर बात है मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ अगर आपसे पूछता है कोई कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो आप कहें भाई अगर मैं एज एन एंटरप्रेन्योर देखता हूँ, एज अ पर्सन देखता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप को, तो ये बताता है कि प्रोसेस या मेरा एक्शन या मेरे प्रोसेसेस जिनकी वजह से मैं कोई कारोबार एस्टैब्लिश करता हूं या उसको बढ़ाता हूं, उन प्रोसेसेस को, उन एक्शन को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये बहुत सादा अल्फाज में आपको मैंने बताना था। और अगर हाशु फाउंडेशन के जो मेरे कोलीग्स हैं वो कहना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होती है, तो बहुत सादा से कह सकते हैं आप, बहुत सिंपल सा, कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ
improving skills, knowledge and attitude of entrepreneur through various trainings, programs and interventions. तो ये था entrepreneurship. अच्छा, अब मजे की बात ये है जी जी किसी का रिपीट कर। हाँ, डेफिनेशन ये है कि अच्छा, एक तो ट्रेनिंग्स के लिए है ना जो मैंने बता दिया है, वो क्लियर है सबको? सर रिपीट कर दें अगर एक दफा। मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, अब ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग सारे गौर से सुनो कि अगर सब गौर से सुनते हैं कि अगर मैं अभी कोई एम्प्लॉय नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, और मुझसे कोई पूछता है कि यार आपने तो पढ़ लिया है, इतनी ट्रेनिंग भी ले ली है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ये क्या चीज है? तो सादा अल्फाज में बताएं कि ऐसे प्रोसेस या ऐसे एक्शंस किसके, उस पर्सन के जो कोई कारोबार को शुरू करने में या उसको फरोग देने में वो प्रोसेस और एक्शंस लेता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है? और वो मौकों को, अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इनटू इनकम जनरेशन एक्टिविटीज या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये है मेरे जो हम तमाम एक ट्रेनिंग्स के हवाले से बात करते हैं। लेकिन अगर मैं एज अ एम्प्लॉय बात करूंगा, एज अ ट्रेनर बात करता हूं, तो उसके पीछे है तो बहुत कुछ। देखिए 40 मिनट्स में एंटरप्रेन्योरशिप और कॉम्पिटेंसीज तो हो नहीं सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक दूंगा। तो आप कह सकते हैं, मेरे जो दोस्त हैं और कोलीग्स जो हैं आशु के, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो इम्प्रूव करता है स्किल्स को, नॉलेज को और एटीट्यूड्स को थ्रू किसके जरिए से? मुख्तलिफ ट्रेनिंगों के जरिए से, मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए से, मुख्तलिफ इंटरवेंशंस के जरिए से। यानी अगर इंग्लिश में मैं कहूंगा तो मैं यूं कहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड of entrepreneur through various trainings, programs and interventions. और देखिए इस तरीके से आपके पास दो डेफिनेशंस आ गई हैं। जो भी आपको आसान लगे इससे भी आसान कर लो अगर हो सकता है। I hope done the answer. लिख लिया? Yes sir, thank you so much. अब मैं देखता हूँ हर जगह पे तो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, एंटरप्रेन्योर, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिश, इनिशिएट, एबिलिटी, रेडीनेस, बहुत सारे लफ्ज अभी हमने इस्तेमाल किए। ठीक है ना? तो फिर आप मुझे ये बताइए कि एंटरप्रेन्योर को कैसे डिफाइन करूंगा मैं? ये भी तो होना चाहिए ना, हाँ? कि एंटरप्रेन्योर को मैं कैसे डिफाइन करूं। लेकिन डेफिनेशन से पहले एक खूबसूरत बात बताता हूं। खूबसूरत बात यह है, इसकी तारीख बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर है और शिप है। अगर एंटरप्रेन्योर ही नहीं है तो शिप खुद नहीं चल सकती। ये एंटरप्रेन्योर ही है जो उस शिप को चलाता है और उसका आउटकम एंटरप्राइज निकलता है। सबसे पहले इसमें भी दो राय हैं। एक है 1700 में रिचर्ड कैंटिलान एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, और उसका ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, और वो सर काइंडली नाम दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। रिचर्ड कैंटिलान, या इसको जेंटिलान भी कहते हैं, जेंटिलान। ये मैडम आयशा फ्रेंच ज्यादा उनको समझ आती है, तो अगर वो हो तो वो हमें दुरुस्त भी कर सकती हैं। उन्होंने
सबसे पहले वो लोग समझते हैं, हम जैसे तालिब इल्म समझते हैं कि वो ही वॉज द फाउंडर जो है ना ऑफ दैट वर्ड, ठीक है। या हम फाउंडर नहीं कहते तो हम कहते हैं कि ये टर्म इन्होंने पहले बताई, ठीक है। और 1977 में एक उन्होंने पब्लिश किया था अपना एक एसे ऑन द नेचर ऑफ कॉमर्स 1755 में। तो वहां से ये टर्म फिर बहुत मशहूर हुई, फिर 1800s में भी चली, फिर 1900s में भी चली, फिर 20वीं सदी में, और फिर 21वीं सदी में, और अभी तो ये रुकने का नाम नहीं लेती है। अक्रॉस द वर्ल्ड, नहीं, ये देखो मैं ऐसे बार बार नहीं बोलूंगा। ये 1755 में रिचर्ड कैंटिलन जो है, या रिचर्ड जेंटलॉन जो है, उसने एक एसे 1755 में पब्लिश किया था ऑन द नेचर ऑफ कॉमर्स। नेचर ऑफ कॉमर्स में उन्होंने पहली बार ये लफ्ज वहां पे यूज किया और फिर पूरी दुनिया में फैला, ठीक है। क्लियर? हाँ क्लियर है सर, थैंक यू सर। जबरदस्त। यस सर, क्लियर, थैंक यू सो मच। तो एंटरप्रेन्योर को ये फ्रेंच वर्ड है और उसके मायने टू अंडरटेक, कुछ शुरू करना। और पुराने वक्तों में जर्मनी में मैंने शहनाज कपाड़िया राहत की एक बुक में, जो राहत सगीर साहब ने एक बुक लिखी थी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, वो जब मैंने पढ़ी तो वो कहते हैं कि 1700s में या उसके आगे पीछे 15वीं 16वीं सदी में ये जर्मनी में जर्नैलों को भी एंटरप्रेन्योर कहते थे। और असल वर्ड जो था वो था एंटरप्रेन्योर कहते थे वो, जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते चलते चलते एंटरप्रेन्योर बना और फिर ब्रिटिश की डिक्शनरीज में भी आया। तो इसकी बड़ी खूबसूरत तारीख है। जैक बर्सन ने जो है, जो वो उसने भी 1723 में जब एक डिक्शनरी बनाई तो उसमें इसका जिक्र किया एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर, और मैं शुरू में देखिए तस्वीर देखें, पर्सन भी कहता हूं एंटरप्रेन्योर भी कहता हूं, ये दोनों एक है। यानी वो शख्स, person who develop, start, initiate, run his or her own business, वो शख्स, वो शख्सियत, वो मर्द हो या औरत, जो कि शुरू करे, बिजनेस को शुरू करे या चलाए और मैनेज करे, मैनेज all 4 stages of business cycle, all 4 stages of business cycle, और उससे वो मुनाफा कमाए, उससे वो अपनी आमदनी कमाए, उस शख्स को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, जिसका मैंने आपको जिक्र कर दिया कि पहली बार रिचर्ड कैंटिलन ने जो है 17th सेंचुरी में, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था, उन्होंने ये लफ्ज जो है दुनिया को मुतारिफ करवाया। अच्छा, एक और बात देखिए, अक्सर हम ये भी देखते हैं एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन, एंटरप्राइज। ये एंटरप्राइज और बिजनेस जो है ना, ये सिनोनिमसली यूज होते हैं, ये हम मानी हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क है, अगर कभी मौका मिला डिटेल में जाएं तो वहां पे फिर कभी आपको बताएंगे, लेकिन ये तकरीबन एक हो गए हैं। बिजनेसमैन भी कहते हैं हम, एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, ठीक है। रिस्क टेकिंग वाली बात है, बहुत सारे असातिज़ा कराम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क टेकर होता है, तो मैं कहता हूँ कि जी, जो बिजनेस करता है वो भी रिस्क टेकर होता है बकौल आपके। एक रेडी वाला जो 5-10 हज़ार रुपए की रेडी लगाएगा, वो भी तो रिस्क ले रहे हैं ना 5-10 हज़ार रुपए के ऊपर, पैसा तो उसका भी दाव पे लग गया है। तो रिस्क टेकर हर एक वो शख्स होता है जो बिजनेस करता है, सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर से जो है तो हम नहीं जोड़ते।
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرپرینور کی کمال کی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، وہ انوویٹر ہوتا ہے، وہ ویلتھ کریٹر ہوتا ہے، وہ سینسیبل اور کیلکولیٹڈ رسک ٹیکر ہوتا ہے۔ دوبارہ غور سے سن لیں، انٹرپرینور جو کاروبار کرنا چاہے یا جو کاروباری بننا چاہے یا جو کاروباری جیسا بننا چاہے، سارے الفاظ دوبارہ بتا رہا ہوں، جو کاروباری بننا چاہے، جو کاروباری جیسا بننا چاہے، تو وہ انوویٹر ہوتا ہے، وہ انیشیٹر ہوتا ہے، وہ ویلتھ کریٹر ہوتا ہے، انکم جنریٹر ہوتا ہے، وہ سینسیبل اور کیلکولیٹڈ رسک ٹیکر ہوتا ہے۔ آنکھ بند کر کے چھلانگ نہیں مارتا، 6 کے 6 سینسز کھول کے چھلانگ مارتا ہے، تب جا کے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ باقی کامیابی دینا نہ دینا وہ ہمارے رب کے ہاتھ۔ تو یہ ہے انٹرپرینور۔ اب اگر انٹرپرینور کے ساتھ میں IAL لگا لیتا ہوں، انٹرپرینور کے ساتھ اگر میں IAL لگا دوں تو کیا بنے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ انٹرپرینوریل۔ واہ واہ واہ، ویری گڈ، تھینک یو، انٹرپرینوریل۔ تو انٹرپرینوریل IAL لگا دیا۔ یہ گرامر میں زیادہ نہیں جاؤں گا، یہ سفکس ہے، جیسے ہمارے صاحب کے لہاقے ہوتے ہیں تو ایسے ان کے بھی جو انگلش میں ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں، جیسے لاؤڈ کے ساتھ LY لگا دو تو لاؤڈلی بن جاتا ہے، کوئک کے ساتھ LY لگا لو تو کوئکلی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی سر، we can understand. You can understand. Thank you very much. لیکن جن کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ سفکس جو ہے یہ کسی بھی ورب یا ناؤن کے آخر میں لگاتے ہیں، ان کو ہم جوڑتے ہیں۔ کیوں جوڑتے ہیں؟ تاکہ اس لفظ کے معنی کو اور کسٹمائز کر دیا جائے، اور نکھارا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم جنرل سینس جب لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس جیسا، آف دا کائنڈ، IAL کو اگر میں دیکھتا ہوں، اس طرح کا، اس جیسی خوبیوں والا، اس کے طریقے والا۔ تو جب انٹرپرینور اور انٹرپرینور کے ساتھ IAL میں لگا دوں گا، یعنی کائنڈ آف دیٹ پرسن، ہیونگ فارم آف دیٹ پرسن، having character of that person, pertaining to that person, pertaining to that thing، تو وہ بن جائے گا انٹرپرینوریل، یعنی وہ شخص جس کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں جو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی کاروباری شخص کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے، یا انٹرپرینور جیسا شخص، اس کو ہم انٹرپرینوریل کہتے ہیں۔ اس سادہ زبان میں کہ آپ کہتے ہیں نا بعض دفعہ یار وہ بالکل میڈم عائشہ کی طرح بولتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کہتے ہیں یار وہ بالکل دیکھو امیتابھ بچن کی طرح لگتا ہے، یا آپ کہتے ہیں یار وہ دیکھو بالکل مولانا کی طرح باتیں کرتا ہے، تو وہ جو اس کی طرح ہے، تو IL لگنے سے مطلب ہو گیا کہ وہ شخص انٹرپرینور جیسا ہے، اور a person having the qualities that are needed to succeed as an entrepreneur۔ تو وہ جو اس جیسا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ جیسے والے میں کچھ چیزیں تھیں جس سے میں اپنے آپ کو تشبیہ دیتا ہوں، ہے نا؟ میں کہتا ہوں کہ جی میں تو کبھی کبھی میڈم عائشہ کی طرح بات کرتا، یا میڈم شہناز کی طرح بات کرتا، یا
मैं अपने उस्ताद की तरह बात करता हूँ, तो फिर मेरे उस्ताद में या मैडम आयशा में कोई चीज है जो मेरे दिल को छू जाती है। वो चीज जो है वो मुझे औरों से अलग, औरों से नुमाया और औरों से बुलंद दर्जा कर देती है। उस चीज को हम कहते हैं कॉम्पिटेंसीज। उस चीज को हम कॉम्पिटेंसीज कहते हैं, और ये कॉम्पिटेंसीज भी बहुत जरूरी हैं। कभी कभी तो यूं भी होता है कि लोग डिफाइन करना चाहते हैं कि स्किल क्या है, कॉम्पिटेंसीज क्या है। ठीक है, अभी स्किल हम हुनर को कहते हैं, और कॉम्पिटेंसीज ये एक बकायदा सेट है। ये किसी एक चीज का नाम नहीं है, ये बहुत सारी चीजों का नाम है। यानी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नाम है इंप्रूविंग द स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। याद है? तो अब नॉलेज, स्किल या एटीट्यूड जो है ये मिलकर कॉम्पिटेंसी बना। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं, अच्छा सबर, मैं आपको एक चीज तो दिखाना भूल गया, सॉरी। ये अभी मैंने थर्ड स्लाइड भी आपके लिए आवेज़न कर दी है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं एंटरप्रेन्योरियल के बारे में। नो द टर्मिनोलॉजी, जाहिर बात है ये टर्म है, इसको भी समझना चाहिए जैसे हमने समझा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये किसी का क्या हो गया? ये अपने म्यूट कर दें जितने भी हैं, म्यूट कर। बहुत किसी का माइक ऑन हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कॉम्पिटेंसीज है, अगर मैं अगली साइड आपको दिखाऊं, इसके बाद वाली एंटरप्रेन्योरियल तो पता चल गया, एंटरप्रेन्योर भी पता चल गया। एंटरप्रेन्योर वो शख्स जो कारोबार करता है, एंटरप्रेन्योरियल वो शख्स जो कारोबारी जैसा है। अब कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं। कॉम्पिटेंसीज में यहां भी मैं आपको बता दूं कि जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कॉम्पिटेंसीज की, कि ये सेट ऑफ स्किल्स है। इसमें नॉलेज भी है, स्किल भी है, एबिलिटी और बिहेवियर भी है। ये सिर्फ स्किल नहीं है, इसमें बहुत कुछ। ये सबसे पहले मैक्लेलैंड और मैकबर 1985 में उन्होंने एक रिसर्च की, और ये रिसर्च जो थी इंडिया में, तुनीजिया में, ईरान में, पोलैंड में, और कौन सा मुल्क था, हाँ मलावी और यूएसए में, कि क्यों कोई शख्स कामयाब कारोबारी होता है और कोई शख्स नाकामयाब कारोबारी होता है। ये क्या वजह है कि कुछ कारोबार तो बहुत कामयाब हो जाते हैं और कुछ कामयाब नहीं कारोबार होते, जबकि कामयाब कारोबारों के तो जो ओनर्स हैं, जो मालिकान हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ना तो वो इतने पढ़े लिखे होते हैं, ना इतने वो जायदादी होते हैं, फिर भी उनके कारोबार कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो हार्वर्ड से और पता नहीं किन किन यूनिवर्सिटियों से पढ़े होते हैं, और माँ बाप के पास पैसा भी बड़ा अच्छा होता है, और उनके कारोबार नाकामयाब हो जाते हैं।
1985 में मैक्लेलैंड और मैकबर ने ये रिसर्च की, और रिसर्च के बाद उन्हें कुछ चीजें पता चली, कुछ सलाहियतें पता चली कि ये वो सलाहियतें हैं कि अगर आप में हैं तो आप एक कामयाब कारोबारी हैं, और अगर आप में नहीं हैं तो आप एक कामयाब कारोबारी नहीं हैं। मसलन आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर जैसा है ना, अगर वो इनिशिएटिव्स लेता है, मौकों से फायदा उठाता है, अपॉर्चुनिटी सीकिंग करना, हाँ, मौकों से फायदे लेना, इनिशिएटिव, पहला कदम उठाना, वो पहल करता है काम करने में, तो वो हमेशा कामयाब रहता है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि ये जाला देखिए ना, जाला, एक मकड़ी पतला सा जाला बना, सॉरी। हाँ, अच्छा, तो पहली चीज चाबी है ना, चाबी का क्या मतलब है? नंबर 1, चाबी का मतलब कोई बताएगा? जी सर। कौन बताएगा? चाबी का क्या मतलब? सर नहीं, चाबी का क्या मतलब है? खोलने की, वेरी गुड, खोलना। चाबी का मतलब, बस हो गया। चाबी का मतलब खोलना, दरवाजा खोलना, ताला खोलना, किस्मत का ताला खोलना, खुशकिस्मती का ताला खोलना, मुस्तकबिल का ताला खोलना। तो उसके लिए आप पहल करते, ठीक है? ये है इन पहली सलाहियत। दूसरी सलाहियत जाला बताएं। जाले का क्या मतलब है? जब आप जाल बुन लेते हैं, कौन बताएगा? Sir, I want to tell, sir. My name is Usman. जी प्लीज। हाँ, बिजनेस के लिए रेफरेंसेस बनाना। अच्छा, मैंने अभी तक कोई भी बिजनेस का लफ्ज यहां लिया ही नहीं है। मैंने बात शुरू में क्या की थी? एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, यानी कारोबारी शख्स या कारोबारी जैसा, उसकी सलाहियतें। तो आप एक नेटवर्किंग करते हैं, आप कनेक्शंस बनाते हैं, आप राब्ते बनाते हैं, आप दोस्तियां बनाते हैं, लेकिन उनमें मुस्तकिल मिजाजी होती है, ठीक है? तो मुस्तकिल मिजाज होना। और ये तीसरी तस्वीर क्या दिखा रही है आपको? रिस्क टेकिंग, रस्से पे चल रहा है, हाथ भी खुले हुए हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे चलता है। और मैंने थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले, ये भी आपको बताया था कि सेंसिबल रिस्क टेकिंग, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, अंधा एतकाद नहीं होता है। अल्लाह ताला ने खुद कई जगह पे कहा है, ठीक है ना, तवक्कल तो अल्लाह के मायने और हैं। मैं यहाँ घर में बैठ गया हूँ, क्वारंटाइन कर लिया है, मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया है। मैंने कहा, या अल्लाह, तू अगर मुझे कोरोना कर सकता है तो यहाँ भी कर सकता है और बाहर भी कर सकता है, लेकिन मैं अपनी हिफाजत करता हूँ, अब तेरे जिम्मा, अब मैं तेरे हवाले। तो मैं अपने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो ले लेता हूँ। वेरी गुड, जबरदस्त। चौथा जो है वो है डिमांड एंड एफिशिएंसी, डिमांड फॉर एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। ये कप सा बना हुआ है, क्वालिटी काम कर रहा है। यस सर। और हम तो क्वालिटी का काम ही नहीं करते हैं, है ना? बस छटपट किया, चलो जबरदस्त, बात खत्म हो गई। ये किसी का माइक जो है वो ऑन है, प्लीज म्यूट कर दें। इसी तरीके से कमिटमेंट है, कमिटमेंट टू द वर्क कॉन्ट्रैक्ट।
पिछली क्वालिटी के ऊपर एक आयत याद आ गई है, उसका मफहूम सुना दूंगा कि गलत काम न करो, गलत माल मत बेचो, बुरा माल मत बेचो, क्वालिटी वाला माल बेचो, उसकी बुराई बता कर दो। कमिटमेंट टू द वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इसी से याद आया, वादे मत तोड़ो। हम सबसे ज्यादा वादे तोड़ रहे होते, कमिटमेंट कर लेते हैं। मैडम आयशा के साथ कमिटमेंट किया, जुनैरा के साथ किया, माँ बाप के साथ किया, दोस्तों के साथ किया, फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तरसों कर लूंगा, चलो कोई बात नहीं, मैडम को तो भूल गया, माँ बाप को भूल गया। वो भूले नहीं होते हैं, वो भी आंख बंद कर लेते हैं, क्या करें आप। सो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सातवां छठा क्या है, एक बोर्ड के ऊपर तीर का निशान है, बुल्सआई मारना, मकसद बनाना। हमारा मकसद ही कोई नहीं है। सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, अब मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, ये तो मुझे सोचना चाहिए ना। मैंने क्या करना है, मैंने आज क्या करना है, मैंने कल क्या करना है, मैंने एक हफ्ते बाद क्या करना है, मैंने 10 साल बाद क्या करना है। ऐसा क्या होगा कि 2030 में लोग मेरे बारे में ये बात कर रहे हो, मैं कुछ तो हदफ बनाऊं, कुछ तो मकसद बनाऊं, कुछ तो विजन देखूं, कुछ तो ख्वाब देखूं। तो ये एक सलाहियत है गोल सेटिंग की, हदफ बनाना, अपनी जिंदगी का मकसद बनाना या काम का मकसद बनाना। इसी तरीके से सातवीं है इंफॉर्मेशन सीकिंग, मालूमात लेना। हमारे पास तो मालूमात ही नहीं होती, जो किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ कह दिया आगे वैसे ही पहुंचा दिया, बाद में पता चलता हो तो झूठ था। हाँ, यस, ना हम नेट से फायदा उठाते, सारा दिन फेसबुक और व्हाट्सएप। अरे कभी गूगल भी देख लो, कोई रिपोर्ट भी देख लो अपने हवाले से। अगर आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, तो कभी उसकी कोई यूट्यूब में कोई उसकी क्लिप देख लो, वहां पे रेसिपी देख लो, वहां पे देख लो कैसे सर्विसेज होती हैं, वहां पे देख लो हाउ टू रिसीव द गेस्ट, ठीक है ना, हाउ टू हैंडल द गेस्ट, वो देख लो, अखबार देख लो, रिसाला देख लो, अपने से सीनियर से मिलो, अपने से बड़े से मिलो, किसी इदारे के पास जाओ कि जी मुझे ये मालूमात चाहिए, क्या आप बता दें। और ये तो अगर मैं देखूं ना, तो मैं तो कहूंगा कि इसको तो पहले नंबर पे होना चाहिए कि मालूमात मालूमात मालूमात। और अल्लाह ताला तो कुरान पाक में खुलम खुला कह रहे हैं, तो फिर देखो ना, कोई है समझने वाला, कोई है आंखों वाला। अब अनपढ़ और समझदार बराबर तो नहीं हो सकते। क्या हुआ जी? अच्छा आगे, सॉरी। तो इंफॉर्मेशन जो है ये एक बहुत बड़ी सलाहियत है, प्लीज आप इसके ऊपर काम करें, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लो। हो सकता है जुनैरा के पास मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ये भी हो सकता है आप में से किसी के पास, सादिया के पास मुझसे और जुनैरा से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। तो मैं क्यों ना जुनैरा से और या मैं और जुनैरा सादिया को कहें। हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए ओहो जी मैं तो पता नहीं 1996-95 से ये एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज के ऊपर काम करता हूँ, मैं सादिया से क्यों पूछूं। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। इंफॉर्मेशन चाहिए भाई, भले वो गार्ड से क्यों ना हो, किसी चौकीदार से क्यों ना हो, मालूमात चाहिए। इसमें पढ़ा लिखा या अनपढ़ की कोई बात नहीं। फिर प्लानिंग करना है। ये तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में भले एंटरप्रेन्योर क्यों ना हो, मैंने बहुत सारे मोर देन 700 SMEs के साथ मैंने काम किया है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ। मोर देन 10,000 जो है तो मैंने माइक्रो एंटरप्राइजेस के साथ काम किया। प्लानिंग तो नजदीक से नहीं गुजरी, करते ही नहीं है। क्यों? हमें बचपन से ही नहीं सिखाया गया प्लानिंग करने का, बताया ही नहीं गया प्लान करो ना, प्लान करो ना, प्लान करो ना। प्लानिंग से मुराद ये होती है हमारी कि हमको बिजनेस प्लान लिखने वाले, नहीं यार।
अपनी चीजों को तरतीब देने को प्लान कहते हैं, वो कर तो लो, तो प्लानिंग ही नहीं रहती। सुबह उठते हैं, भागम दौड़ जा रहे होते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती है, ना एंटरप्रेन्योर को समझ आ रही होती है। तो यहाँ पे मैकलेलैंड ने और मैकबर ने कहा कि अगर प्लानिंग नहीं है तो कारोबार खत्म, और अगर प्लानिंग है तो कारोबार है। आप यकीन जाने इन लेट दिसंबर, मुझे याद नहीं है कि पता नहीं जनवरी का महीना था, मैंने किसी को कहा कहो उसको कि वो मास्क बनाना शुरू कर दें, नहीं किया। क्यों? क्या करें आप? और उसका नतीजा क्या निकला कि उसने किसी को फोन किया कि मुझे अगर कोई इमदाद हो जाए, क्योंकि काम कोई नहीं, कपड़े तो कोई सीने नहीं आ रहा। तो मास्क सीने में क्या था? यानी अगर मैं पहली सलाहियत को देखता हूं तो अपॉर्चुनिटी तो थी, लेकिन उसके अंदर प्लानिंग की कमी थी, उसके अंदर रिस्क टेकिंग की कमी थी, वो मुस्तकिल मिजाज ही नहीं थे, वो अहदाफ बना ही नहीं सके। तो वक्त निकल गया, ठीक है। अब बहुत कुछ भी करे, अब अगर मैं हाशु फाउंडेशन को भी रिक्वेस्ट करूं, मैडम को भी कहूं कि मैडम प्लीज इसके लिए कुछ कर दें, तो मैडम कहेगी मैं जो भी करूं अब इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब तो दौर ही खत्म हो गया ना। अपॉर्चुनिटी तो आती है, जो पहल करता है वो छा के ले जाता है। और इसी तरीके से अगर आप 9वीं सलाहियत देखें तो वो है नेटवर्किंग। ये बहुत जरूरी है, परसुएशन एंड नेटवर्किंग। हमारे दौर में तो ये नहीं होता था, आपके दौर में तो माशाल्लाह व्हाट्सएप है, स्काइप है, फेसबुक है। इसके ऊपर खूब और खूब आप परसुएशन करें, खूब इसके ऊपर नेटवर्किंग करें, ठीक है। हमारे वक्तों में तो नहीं होता था, हम तो खुद मिलने जाते थे, और आपको कभी भी मौका मिलता है आप नेटवर्किंग में फिजिकली भी जाएं, बिलमुशाफा मुलाकात करें, और हर वक्त मैसेज नहीं, महीने में 2 महीने में एक बार टेलीफोन भी कर लें ताकि एक दूसरे की आवाज सुने, महीने 2 महीने में एक दफा मुलाकात कर लें। तो ये एंटरप्रेन्योर जो है, कामयाब एंटरप्रेन्योर या कामयाब एंटरप्रेन्योरियल, तो जो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन को भी देखता हूं तो वो यही आ जाती हैं कि वो क्वालिटीज नीडेड टू बी सक्सीडेड और सक्सीड एज एन एंटरप्रेन्योर। तो ये आपको जो है कॉम्पिटेंसीज की जरूरत होती है। और आखिरी जो है एक 10वीं जो है, उसमें मैं अगर आपको बताऊं, ये है कॉन्फिडेंस या इंडिपेंडेंस। जाहिर बात है, अगर आपके पास जो ट्रेनीज हैं, मैं इनकी ही बात कर देता हूं, आप फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटैलिटी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और अगर आप अपॉर्चुनिटी सीकिंग करते हैं, ये सलाहियत आप में आती है, तो अपॉर्चुनिटी सीकिंग करने के लिए लाजमी आपने इंफॉर्मेशन सीकिंग करनी। विदाउट इंफॉर्मेशन आपको कैसे अपॉर्चुनिटीज का पता चलेगा कि वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं? तो आपने तो बाहर निकलना ही, और इंफॉर्मेशन घर में नहीं बाहर देखनी होती है। और जाहिर बात है, इंफॉर्मेशन लेनी है तो फिर आपने अहदाफ भी तो तय करने हैं ना, कि कब तक इंफॉर्मेशन लेनी है, कब तक क्या करना, तो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर। और जाहिर बात है, अगर आपने ये करना है तो आपने मुस्तकिल मिजाज रहना है, परसिस्टेंस रहना है। ऐसा नहीं कभी उठे कभी ना उठे, कभी गए कभी ना गए, फिर ऐसे नहीं होता। तो जब ये काम करना है, मालूमात लेनी है, वसाइल इकट्ठे करने हैं, अगर आपने कारोबार करना है तो आपने उसके लिए प्लानिंग करनी है, बिजनेस प्लान बनाना है, फिजिबिलिटी बनाना है, टाइम फ्रेम देना है, ताकि इतने अरसे में मैं ये करूंगा, 1 साल में मैं इतने पैसे कमाऊंगा, दूसरे साल में इतने पैसे कमाऊंगा, तीसरे साल में इतने पैसे कमाऊंगा। अब कमिटमेंट टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी है,
और गोल सेटिंग भी। कहां कहां पे मैं चीज बेचूंगा भाई, कौन है लोग, किससे मैं माल खरीदूंगा, कौन है पीपल। 4 P's ऑफ मार्केटिंग है ना। तो मैंने जब कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मैंने 7th P भी पढ़ाया है। 7, ये 2007-8 की बात आपको बता रहा हूँ। 7 P's ऑफ मार्केटिंग। तो आपने इनको देखना होगा। ये सारी सलाहियतें जो हैं ये आपको क्या करती हैं, ये जरूरी है। और अगर ये आपको मिल जाती हैं तो आप जो है, जी जुनैरा, यू वांट टू से समथिंग? जी सर, मैंने कहा अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी है ना आपके इसके बाद। बस ये मैंने मुकम्मल कर दिया है। जी सर। ठीक है, और मैं लास्ट स्लाइड इनको ही बताता हूँ और इन्हीं से पूछता हूँ, और फिर यही मेरे ऊपर उसी से सवाल करें। अगर देखिए तो मैंने इस कॉम्पिटेंसीज में ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की भी बात करी कि अगर आपके पास खाना बनाने का हुनर है लेकिन आपके पास नॉलेज और एटीट्यूड्स नहीं है तो वो हुनर क्या कर लेगा, वो तो मुझे भी फिर आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड को अगर मैं देखता हूं भाइयों, तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपकी आ जाती है, ये 3 तस्वीरें हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आप डिसाइड करें, ये क्या हुआ, नहीं आया? नेट कनेक्शन का मसला है सर, दिखाई नहीं दे रही। नहीं दिखाई तो देनी चाहिए ना। अब दिखाई दे रही है? सर क्लियर नहीं है, ब्लर है, ब्लर है, ब्लर है सर, ब्लर नजर आ रही है सर। चैट में शेयर की गई है यही वाली स्लाइड, सर बिल्कुल भी कोई स्लाइड शो नहीं हो रही, ब्लैंक हियर। चैट में स्लाइड मौजूद है। अच्छा, नजर आ रही है, क्लास पर नहीं शो हो रही, वो अपने कन्वर्सेशन बॉक्स में जाके यस, चैट में, चैट बॉक्स में जो है कन्वर्सेशन बॉक्स। चलिए अभी ऐसे करते हैं, ये स्लाइड लगी रहे लेकिन आपका जो भी क्वेश्चन आंसर है प्लीज वो मुझसे कीजिएगा। सर स्लाइड्स में परसिस्टेंसी नहीं है, स्लाइड्स में परसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा, स्लाइड्स में आप कहते हैं कि परसिस्टेंसी नहीं है? स्लाइड्स में परसिस्टेंसी नहीं है। यस सर। मैं अभी बताता हूं जी, अभी मैं भी देखता हूं। आप अगर परसिस्टेंसी जो है, परसिस्टेंस स्लाइड नंबर जो है तो 4 में रेड कलर में 2 वाला देखो, ये स्लाइड 4 में रेड कलर में 2 लिखा हुआ है ऊपर, रेड डॉट में 2 है वाइट, परसिस्टेंस जाला, उसी से परसिस्टेंसी निकला है। अब हो गया, आ रहा है, परसिस्टेंसी उसी से निकला है, वाई लगा दिया ताकि लफ्ज को कस्टमाइज कर दूं, मुस्तकिल मिजाजी। जी सर, जी मिल गया। परसिस्टेंस मुस्तकिल मिजाज मिल गया, ज्यादा मिल गया। जी सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, यू वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन जी, प्लीज सवाल कीजिए। नो एनी अदर क्वेश्चन जी, कोई जी सर। क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप में जो मैं समझा हूँ सर, इसके मुताबिक ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं होती है, ये फिजिकली भी होती है, इसकी बिजनेस वगैरह? देखिए, बिजनेस के तौर तरीके हैं, ऑनलाइन भी बिजनेस हो सकता है और फिजिकली भी होगा तो फिजिकली ही बिजनेस, वर्चुअल तो हो ही नहीं सकता। ऑनलाइन आपकी एक सेलिंग टेक्निक होती है, ऑनलाइन आपकी एक प्रमोशनल टेक्निक होती है, ठीक है ना। ऑनलाइन आपकी टू फुलफिल द डिमांड, ये टेक्निक होती है। फॉर एग्जांपल, घरों में आप या कोई खातून कपड़े मंगवाती है ऑनलाइन, ठीक है,
तो वो जोड़ा तो फिजिकली आता है ना, ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी, ठीक है, लेकिन आपने ऑर्डर ऑनलाइन दिया, वो जो राइडर होता है वो तो फिजिकली आता है ना, कोई ऐसा तो नहीं होता हम वो जैसे बच्चे बचपन में करते थे, हाँ ये लो टॉफी खा लो, तो हाथ में टॉफी नहीं होती थी और दूसरा भी मुंह में डाल के कहता था यम 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 चलो खा ली। तो बिजनेस जो है वो होगा ही फिजिकली। अभी और किसी का सवाल है क्या? मैं फिर जी आई होप डन द आंसर। सवाल है क्या बहादुर? जी जी पूछ। थैंक यू सो मच सर, आप जाने का तरीका ही आउटकास्ट था कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा जी, सुहेल साहब मेरा सवाल है जी, अभी पूछने जी बेटा पूछें। कौन है? सर सर्विसेज में बिजनेस करेंगे और जैसे अब शेफ है, एक शेफ बिजनेस करेगा, कोई होटल रेस्टोरेंट छोटा सा रिक्शे पे जैसे लगाता है एक खाना और बेचते, तो उसको हम एंटरप्रेन्योर में, इस बिजनेस को हम एंटरप्रेन्योरल कैसे बना सकते हैं? वो होता ही आपका एंटरप्रेन्योर है, वो ही बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल है। सुहेल साहब मेरा भी सवाल है, अगर आप 3 पॉइंट्स में एक बिजनेसमैन को और एक एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है, कोई 3 फर्क हमें मेन बता दें। हेलो हेलो सुहेल साहब का माइक बंद हो गया है। अच्छा मेरा ख्याल है कि गलती से म्यूट हो गया उनसे। अच्छा मैं वो आप देखिए साजिद अगर अनम्यूट कर दे उनका माइक। नहीं वो खुद करेंगे, यहाँ से नहीं हो सकता। मैं उनको कॉल करके यस हेलो या आ गया सुहेल साहब मेरा सवाल सुना आपने? मैंने सवाल बिल्कुल सुना है। याद रखें कोई भी कारोबार ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, कारोबार होता है। अगर आप शेफ फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी बंदा चने अपनी रेडी के ऊपर या रिक्शे के ऊपर रखकर बाजार में बेचता है, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसको भी एंटरप्रेन्योर कहेंगे। जी सर सुहेल साहब मैं ये कह रही थी कि हम सबकी जरा आसान लफ्जों में समझने के लिए बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर इन दोनों में क्या फर्क होता है, कोई 3 मेन फर्क बता दें ताकि हमें याद रहें। अच्छा जी, मैं आपको ये बात बता दूं कि जितना जो मैंने देखा है, मुझे कभी भी बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में फर्क नहीं लगा। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये सिनोनिमसली इस्तेमाल होते हैं, ये हम मानी हैं, ये हम पल्ला हैं, ठीक है। हाँ कुछ असातिज़ा कराम, फिर सुन भी लो ना, कुछ असातिज़ा कराम थोड़ा सा फर्क करते हैं। कुछ असातिज़ा कराम जो हैं सेक्टर को बिजनेस कहते हैं और किसी सेक्टर के अंदर कोई बिजनेस हो रहा होता है तो उसको एंटरप्राइज कहते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को वो बिजनेस कहेंगे, लेकिन अगर एग्रीकल्चर के अंदर आप सब्जी उगाकर बेचते हैं तो उसको एंटरप्राइज कहेंगे। अगर आप खादें वगैरह करते हैं तो उसको एंटरप्राइज कहेंगे, ठीक है ना। अगर आप उसका अचार बना के बेचते हैं तो उसको एंटरप्राइज कहेंगे। तो सेक्टर को बिजनेस कहते हैं, बाकी उसके अंदर जो सब सेक्टर होते हैं उनको एंटरप्राइज कहते हैं। जहां तक मेरा 20-22 साल का तजुर्बा है उसके मुताबिक मैंने कोई फर्क नहीं देखा। अच्छा सर जी, अभी अगर हम जैसे अभी आपने हमें एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज बताई हैं कि इनिशिएटिव लेना, परसिस्टेंट होना, रिस्क लेना, नए आइडिया का सोचना, तो ये सारी जो आपने बातें हमें बताई हैं, अगर ये किसी का माइक ऑन है प्लीज, अगर आप लोग अपने माइक म्यूट कर लें, सवाल पूछते हुए अनम्यूट करें। अभी जो आपने सारी बातें बताई हैं और ये जो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज बताई हैं, इनको ज़हन में रखते हुए अगर हम ये समझें, मिसाल की बात है कि मेरे वालिद जो हैं वो एक ठेले के ऊपर तरबूज बेचते थे,
ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो एक बिजनेस करते थे। अब मैं चूंकि थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया, मुझे पता चल गया कि गर्मियों का जब मौसम आता है तो लोग प्यास लगती है, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसी तरबूज का शरबत बना के बेचना शुरू कर दिया। और फिर चूंकि मैं आपने जैसे बताया कि इंफॉर्मेशन लेते रहना चाहिए, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन भी आ गई कि लोग जो है वो हाइजीन पे बड़े कॉन्शियस होते हैं। तो मैंने जो तरबूज का शरबत अब मैं बेच रहा हूँ, मैंने उसको डिस्पोजेबल ग्लास में डाल के बेचना शुरू कर दिया। फिर मैं थोड़ा सा और चला, मैं कुछ दिन नहीं मेरा कारोबार चला, नुकसान भी हुआ, लेकिन मैं मुस्तकिल मिजाज रहा। और मैंने कुछ दिन बाद अपना जब कारोबार जम गया, तो मैंने फिर वहां जहां मैं शरबत बेच रहा था, वहां मैंने 2-3 रंग बिरंगी कुर्सियां भी रख ली। और मैं मतलब वक्त के साथ साथ भांपता गया, समझता गया कि चीजें कहाँ कैसे होती हैं, और मैं अपने आप को मोल्ड करता गया, और मैं अपने कारोबार को भी, अपने मुनाफे को भी बढ़ाता गया। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का बंदा है। दूसरी तरफ अगर मैं अपने वालिद को देखूं, वो जो डेली तरबूज बेचते थे, तो वो डेली जितना कमा के लाते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह कह के वो अपनी सारी उम्र तरबूज बेचते रहे, या जो भी वो कुछ बेचते थे। तो क्या हम सही समझे हैं कि ये फर्क है एक बिजनेसमैन में और एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के इंसान में? देखिए, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मैं कई एंटरप्रेन्योर से और बहुत बेहतरीन एंटरप्रेन्योर से मिला हूं, जो बिल्कुल आपकी एग्जांपल, वो जो वालिद वाली है ना, वो वैसे ही करते हैं, वो भी वैसे ही करते हैं, बट दे आर एंटरप्रेन्योर्स। कहने का मतलब ये है कि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है। एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो इनोवेटर होता है, वो सोता नहीं है, वो जागे रहता है, उसकी आंखें बंद होती हैं। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी प्लीज, ठीक है। सो बात ये है कि आप ये कहें कि जैसे हम पुरानी थ्योरीज पढ़ते हैं, तो पुरानी थ्योरीज में हम ये कहते थे कि जो आम दुकान है, जो आम रेडी है, या वो बंदा है, वो बिजनेसमैन है। लेकिन अगर जो उसको डेकोरेट कर दे, टेक्नोलॉजी ले आए, इनोवेशन ले आए, तो वो एंटरप्रेन्योरियल हो जाता है। जी ठीक है, शुक्रिया। अगर एंटरप्रेन्योरियल IAL काट दो तो एंटरप्रेन्योर रह जाता है। ठीक है सर, जी जी प्लीज। सर ये आपने जो भी हमें पॉइंट्स बताए सर, ये काइंडली व्हाट्सएप करे तो हमें और आसान समझने में। अच्छा जी, अगला सवाल। अच्छा सर, मेरा नाम उस्मान अली है एंड आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन प्लीज। जी प्लीज उस्मान। अच्छा सर, जैसा कि मैडम ने एग्जांपल दी है कि वो जो तरबूज वाले की एग्जांपल है, इस सारी एग्जांपल में तरबूज वाले ने खुद से तो कुछ भी इनोवेटिव काम नहीं किया। भाई रेडी किसी ने बनाई, तरबूज किसी ने खेत में उगाए, ग्लास डिस्पोजेबल ग्लास बनाने का बिजनेस आइडिया किसी का था, हाइजीन का आइडिया किसी का था, वो जो स्ट्रॉ यूज किए वो आइडिया किसी का था। उसने खुद से क्या किया, सिर्फ मार्केट में जाके किसी के आइडियाज की वजह से जो मार्केट में चीज आई है उसको उठा के लाया और अपनी रेडी पे ले आया वो। इसी तरह हम बात करें, वो जो आपने कहा कि जो रेस्टोरेंट चलते फिरते मोबाइल रेस्टोरेंट हैं, वो अगर वो अपनी रेडी के ऊपर चावल बेच रहा है, तो रेडी बनाने वाला बिजनेस पर्सन था, उसने यूनिक आइडिया उसका था कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊं जिसके ऊपर वजन रखा जाए, वो कैसा भी वजन हो और उसको लेके मार्केट में जाया जा सके। तो वो रेडी वाला एंटरप्रेन्योर कैसे हो गया? वो तो बनी बनाई चीज को यूज कर रहा है। बाकी उसमें जो चावल पकाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की है, वो देग है, पतीला है, चावल है, गैस है, व्हाटएवर, वो जो रेसिपी है, इवन ये सब कुछ, इसमें से वो उसकी सिर्फ एफर्ट इतनी है कि उसने ये सारी चीजें मार्केट से उठा के उनको अपनी रेडी के ऊपर सजा लिया। तो मेरे ख्याल में दिस इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। जो आपने डेफिनेशन बयान की है एंटरप्रेन्योरियल की या एंटरप्रेन्योरशिप की, मुझे इनमें कहीं भी उसकी कोई एफर्ट नजर नहीं आ रही। हाँ, सिर्फ एक उसने काम किया कि उसने शर्म महसूस नहीं की रेडी के ऊपर चावल लगाते हुए, उसने शर्म महसूस नहीं की रेडी के ऊपर तरबूज का शरबत बना के बेचते हुए, और इसमें नया कुछ नहीं किया उसने। सर मेरा जरा माइंड क्लियर करें, मैं इन दोनों बंदों को एंटरप्रेन्योर नहीं मान सकता, एक रेडी वाले को, चावल वाले को, तरबूज वाले को। जी आपका बहुत शुक्रिया उस्मान अली। यस उस्मान अली, दुनिया की व्हाट्सएप करें प्लीज। क्या चीज व्हाट्सएप करें?
सर ये स्लाइड्स कुछ हमें नजर आ गए हैं, कुछ नजर नहीं आए हैं, इसलिए आप ये 5 जो स्लाइड्स हैं ये व्हाट्सएप करें तो हमें और आसानी होगी सर समझने में। ये हम वो कर सुन देंगे लेंगे, सर, वो कर देंगे आप, सुन लेंगे। आपकी इजाजत सर होगी थैंक तो। यू सर। रमजान है सर, बस नहीं क्लोज रमजान करना चाहिए। क्या तो सर तुम्हारा जिसको रोजा है नजर आज क्या? सर जिसको नजर नहीं आ रहे वो राइट स्वाइप करे मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो उससे नजर आ जाएंगे। राइट की तरफ स्वाइप करेगा, जिसको नजर नहीं आ रहे तो वो शो हो जाएंगी पिक्चर्स। जी हो गया आपका? सर जी ये स्लाइड फिर ईमेल करवा दें काइंडली। जी अस्सलाम नहीं वालेकुम सर, ऐसा नहीं हुआ। देखिए पहले मुझे उस्मान के सवाल का जवाब दे दें। उस्मान जी सर। ये किसी भी किताब में नहीं, किसी भी उस्ताद ने ये नहीं कहा, किसी भी तालिब इल्म ने ये सवाल नहीं उठाया कि वो जो आप बात कर रहे हैं कि उसने तो खुद कुछ नहीं किया। एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है, मैनेज करता है, रन करता है अपने कारोबारी को, या तो अकेले हैसियत में या अपने साथ लोगों को मिलाकर, या तो अकेले हैसियत में या लोगों को मिलाकर। मेरे नज़दीक जितनी तालीम मैंने हासिल की है, जो तजुर्बा है मुझे बहैसियत एक तालिब इल्म के, वो जो तरबूज लाया मंडी से, उनको धोया, उनको अपनी एक खूबसूरत सी या साफ सी रेड़ी पे रखा और सारे औजार लाया, तो ये रेड़ी, ये औजार, ये पैसा, ये तरबूज, ये चीजें, ये सारे इनको हम टेक्निकली कहते हैं रिसोर्सेज। तो उसने सारे रिसोर्स मोबिलाइज किए, वरना तो फिर आपका जो मैरियट है उसने क्या कमाल किया, उसको मैं क्यों एंटरप्रेन्योर कहूं? वो भी सब्जी कहीं से लाया, वो भी ईंट पत्थर कहीं से लाया, वो भी मजदूर कहीं से लाया, वो भी शेफ कहीं से लाया, उसने भी सबको इकट्ठा किया ना, ठीक है ना। तो बात तो आपके स्ट्रक्चर की है, उसने जरा बड़े पैमाने पे किया और इस बंदे ने छोटे पैमाने पे किया। मैरियट ने भी बाजार से चावल लाए, मैरियट भी बाजार से गोश्त लाया, और वो जो मोबाइल वैन के ऊपर लाया था ना, वो भी जो बेच रहा था बिरयानी, वो भी वहीं से लाया। मैरियट वाले ने शेफ पे पकवाया, उसने हो सकता है खुद पकाया हो या उसने भी किसी से पकवाया हो, अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने नौकर से, अपने कुक से, या खुद उसने भी पकाया। मैरियट एक जगह पर उसने एक बिल्डिंग ली, एक बिल्डिंग बनाई, उसमें उसने ग्राहक को बुलाया, ये ग्राहक के पास खुद चला गया, इसके पास भी ग्राहक आया, उधर भी ग्राहक ने बिरयानी खाई, इधर भी ग्राहक ने बिरयानी खाई। उधर भी मैरियट के मालिक ने अपने बिजनेस को मैनेज किया, इसने यहाँ पे अपने 5,000 के या 10,000 के बिजनेस को मैनेज किया, उसने 10 अरब के बिजनेस को मैनेज किया। अब अगर मैं नोट्स देखता हूं, सारे गामा पाधा नीसा, गाना या गजल मुख्तलिफ हो सकती है, सुर एक बन रहे हैं, तो मेरे नजदीक मैं समझता हूं, हो सकता है आप इससे मुत्तफिक ना हो, बिल्कुल ना हो मुत्तफिक, लेकिन उस्मान अली ये जूस वाला, ये रेड़े वाला, ये पकौड़े वाला, ये मोबाइल रेस्टोरेंट वाला, ये सारे के सारे एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरीज हैं, इसकी अपनी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक को हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, एक को हम इनकम जनरेटर कहते हैं, एक को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप। आई एम सॉरी सर, मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई होप डन द आंसर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। पहले वो बच्ची को पूछने दें जो भी बिल्कुल, जो पहले बोली है वो आए। मैं कहना चाह रही थी, फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि हर वो शख्स जो अपने आइडियाज और अपने स्किल्स को काम में लाकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, इससे आसान डेफिनेशन और कोई नहीं है। प्लीज आपने बिल्कुल ठीक, एक दफा फिर दोहरा दो। हर वो शख्स जो अपने स्किल्स आइडियाज को काम में लाकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। बस बात खत्म हो गई, बस बात खत्म हो गई।
और उस प्रोसेस को जो उसको डेवलप करने में काम देता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहते हैं। वेरी गुड, जबरदस्त, थैंक यू। अगला सवाल। सर आप ये कॉम्पिटेंसीज जो वर्ड है आप इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे सर? जी, क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए सर? जो कॉम्पिटेंसीज जो वर्ड है सर, कॉम्पिटेंसीज जो हम जब देखते हैं दो किस्म की चीजें हैं। अक्सर लोग एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी कहते हैं, अक्सर लोग कॉम्पिटेंसीज भी कहते हैं। जो असल वर्ड था ना, असल वर्ड वो कॉम्पिटेंसीज था, क्योंकि जिन्होंने डिराइव की थी मैकक्लेलैंड और मैकबर्न ने 1985 में 5-6 ममालिक में रिसर्च की थी इंक्लूडिंग, उन्होंने उन क्वालिटीज को या उन एबिलिटीज को या उन बिहेवियर्स को या उन एटीट्यूड्स को उन दोनों ने नाम दिया कॉम्पिटेंसीज का, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। और ये भी बताता चलूं ये टोटल 13 उन्होंने बताई थी, फिर वक्त के साथ साथ हमने इसको 10 पे कर दिया, ये 13 बनती हैं पूरी। फॉर एग्जाम्पल इनिशिएटिव ये अलग कॉम्पिटेंसी थी, अपॉर्चुनिटी सीकिंग अलग कॉम्पिटेंसी थी, तो हमने इन दोनों को क्लब कर दिया, मर्ज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल परसुएशन ये अलग कॉम्पिटेंसी थी और नेटवर्किंग अलग कॉम्पिटेंसी थी, लेकिन हमने जब रूट देखा तो हमने उस बेस को देखते हुए इनको भी मर्ज कर दिया। ठीक है ना? इसी तरीके से ये जो इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, या इसमें एक और भी होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये टोटल 13 थी जो डिराइव्ड हुई थी। तो कॉम्पिटेंसी से हम मुराद ये लेते हैं कि अ सेट ऑफ व्हाट, यानी जैसे सेट होता है ना, डिनर सेट, टी सेट, वाटर सेट, उसमें बहुत सारी चीजें होती। तो इसके सेट में, कॉम्पिटेंसीज के सेट में क्या है? स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स, या आप इसको एबिलिटी कह दो या आप इसको बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो स्किल्स, नॉलेज एंड बिहेवियर्स जो है ये तीनों मिलके कॉम्पिटेंस बनाती हैं। आई होप डन द आंसर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम हिरा इमरान है और मैं हाशु की ट्रेनी रह चुकी हूँ। लास्ट जुलाई में मेरा सेशन एंड हुआ था हाशु के साथ। उसके बाद नवंबर से सर मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर। मेरा बिजनेस ये है सर कि मैं लंच बॉक्सेस प्रोवाइड करती हूँ डिफरेंट ऑफिसेज में और हॉस्टल्स वगैरह में। इसके अलावा मेरा जो है वो 1 मील ऑर्डर्स का भी बिजनेस है सर। जो कि हालात चल रहे हैं आजकल लॉकडाउन की वजह से, सबका काम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। उसकी वजह से ऑब्वियस है कि ऑफिसेज वगैरह बंद होने की वजह से मेरा काम भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। मेरा काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसके बाद रमज़ान में मैंने जो है वो फ्रोज़न फूड का काम स्टार्ट किया, लेकिन वो भी तकरीबन फर्स्ट 15 तक जो है वो बहुत अच्छा चला। उसके बाद वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो गया क्योंकि लोग जो है वो थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ से अभी दूर हैं कि बाहर का कुछ, मतलब बाहर से कुछ आए ही ना हमारे घर में, क्योंकि डिलीवर ऑब्वियस है बाहर से हो रहा है। तो यहाँ पे आप, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपके नज़र में मेरे लिए अब ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मुझे अवेल करना चाहिए? आपके अलावा मुझे यहाँ पे बाकी जितने लोग सुन रहे हैं, अगर उनके पास कुछ बेटर आइडियाज़ हैं तो मैं आजकल इसी वर्किंग में हूँ कि अब मुझे किस तरह से जो है वो मतलब दोबारा निकलना है इस चीज़ से। तो आप और आपके अलावा जो सब सुन रहे हैं उनके पास अगर कुछ बेटर आइडियाज़ हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। हेरा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगा कि ये दिस इज़ नॉट द राइट फोरम, क्योंकि अगर इस बात पे हम चल निकले तो ये बात बहुत दूर चली जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा इन कॉम्पिटेंसीज को देखो, ठीक है, और परसिस्टेंस रहो, छोड़ो नहीं, प्लानिंग करो और अपॉर्चुनिटीज देखो, नेटवर्किंग करो। ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा क्या होगा कि किस तरीके से अगर एक शॉप से, एक फैक्ट्री से जोड़ा किसी के घर जा सकता है तो मेरे घर से पका पकाया खाना क्यों नहीं जा सकता? क्या वजह है इसकी? ये वजह आपने खुद तलाश करनी होगी, तभी आपको पता चलेगा। आपका बहुत शुक्रिया।
जी सर, हिरा के बिहाफ पे अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि इस सेशन के बाद जब भी आपको कन्वीनियंट हो हिरा, आपकी थोड़ी सी काउंसलिंग ले ले। अगर आप हाशु को ट्रेनिंग के लिए आपकी इजाजत हो तो हम हिरा के साथ सुहेल साहब का नंबर शेयर कर देंगे। सुहेल साहब अगर इजाजत है तो आप, ये हमारी यंग एंटरप्रेन्योर है, हमारे लिए खुद एक सक्सेस स्टोरी है, तो आप प्लीज जरूर इनको गाइड करें। हिरा आप इसके बाद शोभिया के थ्रू कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। बिल्कुल करें, मैंने इनको आइडिया दे दिया है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आखिरी क्वेश्चन। जी जी सर। जी सर, मैं भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी बोलिए, मैं तो सुन रहा हूँ, आप तो बोलेंगे ना। जी मेरा एक क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योर सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जी सर, मैं भी उस्मान की बात से मुत्तफिक करूंगा। हेलो जी, देखिए बारी बारी बोले वरना तो सब समझ नहीं आएगी मुझे कौन क्या बोल रहा है। जी सर, मैं जी सर, पहले वो लड़की बोल रही थी, सबसे पहले वो लड़की बोल रही थी, कौन थी वो? जी हेलो सर। जी सर, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। मेरा ये कॉम्पिटेंसीज में जो सेकंड नंबर पे परसिस्टेंस है ये, और 9 नंबर पे जो परसुएशन है, इसकी मुझे समझ नहीं आई, दोनों मुझे सेम लग रहे, तो इस हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, कोई मसला नहीं है इनमें, ठीक मतलब है ना। ये दोनों सेम ही है। देखिए परसिस्टेंसी जो है ना वो हम ज्यादातर उससे लेते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से। लोग मुस्तकिल मिजाज है कि नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। जैसे अगर मैं हिरा को देखूंगा तो ऐसा ना हो कि हिरा अभी फूड छोड़ के ना कपड़े बेचने का कारोबार शुरू करे, फिर कल को कपड़े बेचने का छोड़ के ना वो जूते बेचने का या चूड़ियां बेचने का शुरू कर दे। बिलाखिर घर में भी जो मर्द हजरात या खवातीन होंगी वो कहेंगी कि खुदा का वास्ते हिरा, अल्लाह के वास्ते आराम से बैठ जा, ठीक है, कभी ये करती है कभी वो करती है, और हो सकता है एक दिन आए कि ये खुद ही छोड़ दे। मुस्तकिल मिजाजी और ढीठपन में भी थोड़ा फर्क होना चाहिए, ठीक है, कि अब आपको पता है कि किसी भी सूरत मेरा ये कारोबार नहीं चलता तो मैं क्या करूं, नई स्ट्रेटजीज दे, ठीक है। सो वो मुस्तकिल मिजाज की साथ मिलता है। परसुएशन जो है, परसुएशन कहते हैं कायल करने को, कायल करने को। अब अगर हिरा आप सुन रही हैं, ये किसके स्पीकर ऑन है, ये किसके स्पीकर ऑन है। अब अगर हिरा, ठीक है, अब अगर हिरा अपने नेटवर्क में देखती है, अपने नेटवर्क को कायल करती है, ठीक है ना, परसुएशन है, कायल करना बहुत बड़ी सलाहियत है, और उसे कहती है कि मैं एक राइडर रखती हूँ, जब तुम्हारे पास पिज्जा लाने वाला पिज्जा ला सकता है तो मेरा खाने वाला लंच बॉक्स तुम्हारे लिए क्यों नहीं ला सकता, अफ्तारी आइटम स्टार्ट करा दे, ठीक है ना। सो अब ये तो हिरा के ऊपर है कि वो कायल कैसे करती है। क्लियर? जी सही सर। और बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ये 4th नंबर पे ये इसकी जरा समझा दीजिएगा, ये डिमांड फॉर एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। हाँ भाई, बात ये है कि अगर मैं यूं देखता हूँ, अब मैं शक की निगाह से देखता हूँ, हिरा ने कहा 15 तारीख तक मेरा फ्रोजन फूड चला, अभी नहीं चला, अभी मैं शक कर रहा हूँ यार क्वालिटी तो खराब नहीं थी, कहीं पे कहीं ये लेट तो नहीं हो जाती थी, कहीं सुस्त तो नहीं पड़ जाती थी, है ना। अब देखो मेरा मयार भी वही कॉम्पिटेंसीज हैं जांचने का, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं तो तब भी इन्हीं से दे रहा हूं। सो डिमांड फॉर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, यार मुझे अभी भूख लगी है ना, मुझे तो अभी खाना चाहिए। हेलो, अगर जी प्लीज, आई होप डन द आंसर, भी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर गोल सेटिंग्स के बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो इसके बारे में बड़ा वो हूं कि अगर आपके गोल्स आप सेट नहीं करते हैं, वो आपके काम के गोल्स हों, वो आपके लाइफ के गोल्स हों, वो आपके कारोबार के गोल्स हों, वो प्रोफेशनल गोल्स हों, वो पर्सनल गोल्स हों, ये तो लाजमी आप बनाएं, छोटा छोटा बना लो,
छोटा छोटा बना लो। यार अभी जो है ना मेरे पास मोटरसाइकिल है, क्यों ना मैं 2025 तक जो है ना एक छोटी सी गाड़ी ले लूं, भले एफएक्सी क्यों ना हो 2-2.5 लाख। तो ये फिर आपको स्ट्रेच करवाते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। इसको आप टारगेट सेटिंग भी कह सकते हैं, आप टारगेट सेटिंग लिख लें इसको, ये गोल सेटिंग भी है, टारगेट सेटिंग भी है। आई होप गंदान। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। यू आर द ग्रेट पर्सन सर, आपने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम जी। आगे जी सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मिर्जा तैमूर बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट मैनेजर के ट्रेड से। मिर्जा तैमूर। मिर्जा तैमूर जी सर। मेरा जो क्वेश्चन है वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड इस सेंस में है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं अपनी जनरेशंस का, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पिछली जनरेशन थी, उनके पास भी आइडियाज थे, और अब जो हमारी जनरेशन है उनके पास भी आइडियाज हैं। तो इन सेंस ऑफ कंपैरिजन इनको हम किस तरह से लेके चल सकते हैं? फॉर एग्जांपल पहले इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी, पहले इतनी ज़्यादा आइडियाज नहीं थे, कि लोग जो थे वो डरते थे बिजनेस वगैरह करने से। अब इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया, इतना ज़्यादा कंपैरिजन उन सब लोगों से सीखते हुए, लोगों की एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हुए अब जो सारी चीज चल रही है, इसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रोटियां तो पतीसा लॉयल। देखिए लोग तो अभी भी डरते हैं कारोबार करने से। हर दौर में आप ये देखिए, 17वीं सदी में ये लफ्ज निकला, 18वीं सदी में जब आप नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करते थे, और हर दौर में टेक्नोलॉजी आती गई। ये याद रखिए कि टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मशीन को नहीं कहा जाता, टेक्नोलॉजी तरीके को भी कहा जाता है। टेक्निकोलॉजी तो टेक्नोलॉजी बना, तो मंबा टेक्निक। अब वो टेक्निक ग्राइंड करने की थी, तो पहले आप मैनुअली ग्राइंड करते थे, फिर किसी ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ग्राइंडर बना दूं जो कम वक्त में ज्यादा मिकदार को ग्राइंड करेगा, तो उसको भी टेक्नोलॉजी कह दिया कि वो एक और टेक्निक है मशीन के जरिए ग्राइंड करना। सो बात ये है कि रिस्क कैलकुलेटेड होते हैं, डर तो लोगों को लगा रहता है। और मजे की बात है, मैंने तो ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जिनके बच्चे कारोबार करना चाहते हैं, वो उन्हें कहते हैं नहीं 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 तुम जॉब करो, ठीक है ना, और खुद कारोबार कर रहे होते। तो ये चीजें तो जो है आपको सिखानी है, समझानी है, आपने कॉन्फिडेंस देना है इस जनरेशन को भी, और इन्होंने कॉन्फिडेंस देना है अगली जनरेशन को। मुझे तो कभी कोई कहता है कारोबार करना है, मैं कहता हूँ वाह जी वाह जबरदस्त, आओ ना, मैं कभी डिस्करेज नहीं करता जी। नहीं सर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट मैं तो आपने जो अभी ये कॉन्फिडेंस की बात की, तो मैं तो इस पे ये कहूँगा, अभी जो ये यहाँ पर हमारी ऑनलाइन क्लास में पतीसे बेचने वाले आए हैं, हाँ। कौन से वाले आए हैं? वो पतीसे बेचने वाले, वो भी अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करें, क्यों नहीं। बल्कि मैं आपके सवाल का एक शेर पे इख्तिताम करूंगा। ये मुझे मेरे चचा ने सुनाया था, अल्लाह बख्शे, कि एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं कहा चाचा मैं बड़ा हैरान हूँ, ये लोग कारोबार क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने हंस के कहा बेटा, इल्म फन के दीवाने आशिकी से डरते हैं। कहते ये कारोबार करना जो है ना, ये इश्क है, ये पूरा टाइम मांगता है, ये 9 to 5 वाली ड्यूटी नहीं है, ये तो 9 to 9 या टिल डेथ वाली ड्यूटी। जी प्लीज सर, अब हम इजाजत लें सब ट्रेनी से।
अगर आपके कोई सवाल हुए तो आप अपने लर्निंग रूम्स जो बने हुए उनमें पोस्ट कर दें और हम जरूर उस पर सुहेल साहब की हेल्प और गाइडेंस लेके आप तक पहुंचा देंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि अब इनको डेवलप कैसे किया जाए। तो मेरे ख्याल में जुनैरा इस डेवलपमेंट के ऊपर फिर अलग से हम 1 घंटा 1.5 घंटे की बात कर लेंगे। बिल्कुल सर, आइंदा आने वाले किसी भी दिनों में, या अगर ये सब बच्चे बताएं हमें कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, तो हम सुहेल साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त निकालें। अभी तो हमने इसको एक झलक दी है जी। 4 घंटे का सेशन है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, वो 1 घंटे में नहीं होता। जी जी सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हाशु हुनर के बिहाफ पे, पूरी टीम के बिहाफ पे, और हम सब जो यहाँ हाशु हुनर की टीम मौजूद है, हमारे ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, हम सब ने बहुत कुछ सीखा है आपसे, और आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं हम उसको इस्तेमाल भी कर लेंगे। अच्छा, वो आखिरी तस्वीर इनको पता चली? पता नहीं सर, हम इनको भेज देंगे प्रेजेंटेशन। हाँ, बस वो आखिरी तस्वीर। अच्छा चले, मैं लास्ट सवाल सबसे पूछता हूँ और 30 सेकंड्स में जवाब देना है। यस या 1 2 3 जो है ये बताना होगा। हाँ, अब आपने फैसला करना है, आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योरियल बनना है या एम्प्लॉय बनना है, ये फैसला आप पे है। आप खुद ही इसको जो है देखिएगा, खुद ही सोचिएगा और 30 सेकंड में अपने आप को जवाब दीजिएगा या अपने साथी को जो आपका दोस्त हो उसको जवाब दीजिएगा कि मैंने क्या बनना है। आपका बहुत शुक्रिया, साजिद का बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया साजिद का। ज़ुनैरा आपका बहुत शुक्रिया, और आयशा का तो हमेशा से ही शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पे ज़किया भी थी, सोबिया भी थी, उसकी आवाजें तो मैंने पहचान ली। और आई हैव लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। उस्मान अली बात कर रहा हूँ। जी उस्मान अली सर, आपका YouTube चैनल है? यार बात सुनो जी जी, मेरा अपना टीवी नहीं है, चैनल कहाँ से लाऊंगा? आप इन चीजों को रिकॉर्ड करो और YouTube पे डालो, ये YouTube चैनल हो गया। ठीक है सर, हम आपके बिहाफ पे आपका YouTube चैनल बना देंगे। बस ऐसा कर, मुझे तो खुशी हो। नो सर, आपके लेक्चर्स बहुत मजे के हैं सर, तो अगर कोई और सोर्स मिल जाए सर आपके लेक्चर सुनने का तो बहुत अच्छा होगा सर। नहीं, मेरे ख्याल में अभी देखो रमजान अच्छा महीना है, हम घरों में भी हैं, तो आइए ऐसे ही घंटे 1.5 घंटे का रखेंगे तो 1.5 घंटा हो ही जाएगा। ठीक है ना? अभी भी तकरीबन जी सर जरूर। हम हाशु फाउंडेशन के ग्रुप्स में है सर, तो अगर डेली इस तरह का कोई मैं तो कहता हूँ आप डेली रखो या हर दूसरे दिन रखो, कोई ना कोई बात एग्री करूंगा। ज़ुनैरा मैम आपसे रिक्वेस्ट है मैम, आप ऐसे रूम्स क्रिएट करते जाए मैम, और हम बिल्कुल जी इंशाल्लाह जरूर। अगर सुहेल साहब अगर हमें दोबारा पकड़ाई दे गए और टाइम दे दिया इन्होंने तो इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आप सबका। सुहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ IT डिपार्टमेंट से साजिद साहब थे जिनकी कंटिन्यूअस सपोर्ट थी, तो आई मस्ट एक्नॉलेज साजिद साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कम कुलीग ऐसे होते हैं जो इतनी सपोर्ट देते हैं। मेरी अपनी टीम, मेरे साथ शोबिया है, बाकी के मैं सब लोगों के नाम लूं, चकिया से ले लाहौर से लेके गिलगित तक जितने भी कुलीग्स हैं, आप वो गिलगित वाले हमारे कुलीग कैसे हैं शोबिया? जी सर, जी सर, सर सब ठीक है। अमजद अली और क्या नाम था एक और का? आप हमें इजाजत दें और आप और शोबिया एक दूसरे का हाल पूछ। अच्छा चलो खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।